Yes, students, in last class we have studied about cyclostomata, that was class of division Agnatha, that means without jaw, and cyclostomata means mouth is circular. Now today we have to discuss about Pisces. In Pisces there are two type of fishes. One is cartilaginous fish and other is bony fish. That means endoskeleton is made up of cartilage and other is made up in bony fish. Endoskeleton made up of bones. So they are known as chondrichthyes and they are known as osteichthyes. So we have to discuss the general structure of fish. After that we have to move about their details. So two very important characters in the fish structure. One is fin and other is scale. In Pisces we have seen that paired fins are there. So what are these fins and what do you mean by scale or body scale? In cyclostomata we have seen that body is devoid of scales. तो यहाँ पर scales हैं. तो scales क्या है? First talk about fins. Fins क्या है कि इससे distinct anatomical feature है. Composed of किसका बना हुआ है? Of bone. Bony भी हो सकता है और it may be of cartilage. इसे bony spines और rays. That means spine like और ray like structure है. Spine जो है वो hard structure है and जो ray structure है that is soft structure है and protruding from the body. Body से बाहर that means in like a extensor body से बाहर आती है. Okay. Sometimes in that means if they join together दो फैशन में ज्वाइन हो सकती है. इधर इन द फॉर्म ऑफ वेब लाइक इन दिस एक वेब सा बनाती है और इन द फॉर्म ऑफ फ्लिपर मीन एक सॉलिड मास बना लेगी. जैसे मैंने यहाँ ये बीच में रेस सी दिखाई है लाइनिंग सी, ऐसा नहीं होगा. दिस वुड लाइक सॉलिड मास ऐसे ऐसे. ओके, तो दैट मीन फिन्स क्या है? The composed of bony or spine or rays हैं protruding from the body हैं and they generally help in swimming. Now there are different types of fins. उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Second is scale. Scale क्या है? That means we are seeing here. ये scales are small size rigid plate हैं. That means these are the small sized rigid plate like structure है. कहां पर ग्रो करते हैं? ग्रो आउट ऑफ द स्किन ऑफ ए फिश. तो दैट मीन्स जो क्या है स्मॉल रिजिड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जो यहां दिख रही है. दीज आर द स्केल और इन स्केल का काम होता है प्रोटेक्शन का. एंड इफ यू टॉक अबाउट दीज एक्सटेंशन ऑन द बॉडी दीज आर नोन एज fins. Now there are different types of fins and different types of scales. Now we have to discuss about them. Now come to the general structure of the fish. Now this is the mouth of fish. This is the eye. Here is the nostril. Now this structure, the lining is a operculum. What is the function of this operculum? Operculum covers the gills. That means inside the operculum क्या है? गिल्स हैं. तो here gills are covered by operculum structure. जैसे मान लिया कोई फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे ओपन होता है और उसके अंदर क्या है? गिल्स है. सो दिस इज नॉन एज operculum. सो operculum, माउथ, नोस्ट्रिल, आई, ये जो पार्ट है दे फॉर्म हेड. They form the head and this part form the trunk and last part form the tail. So the body of fish is divided into three different parts. One is head, second is trunk and third is tail. The body of fish is streamlined. We can say बोट शेप्ड है. बोट कैसी होती है? ऐसे बीच में से ऐसे वी कैन से विड्थ में और आगे पीछे से ऐसे लाइक वी कैन से थोड़ी फाइन होती है. सो स्ट्रीमलाइन बॉडी है. दिस बॉडी हेल्प इन वी कैन से
इजी स्विमिंग में ये हेल्प करता है। तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, तो वी कैन से हेड, देन ट्रंक एंड देन टेल। नाउ कम टू ट्रंक, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिन्स। नाउ कम टू दिस फिन्स। अब देखो, अर्लियर आई यूज द वर्ड पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स। तो यहां पर दो तरह की फिन्स है, वन इज नोन एज पेक्टोरल एंड अदर इज नोन एज पेल्विक। द पेयर्ड फिन, दिस इज द ओनली वन साइड, इसके उस तरफ ऐसी साइड है। द पेयर्ड फिन बिलो वी कैन से प्रेजेंट जस्ट, वी कैन से बैकवर्ड ऑफ द ओपरकुलम इज नोन एज पेक्टोरल फिन। उसको क्या बोलते हैं? पेक्टोरल फिन। ओके, ये पेयर्ड है पेक्टोरल फिन, यानी कि लाइक दिस इज द बॉडी, एक यहां है और एक इस तरफ है। सो दिस इज नोन एज पेक्टोरल फिन। बैक साइड ऑफ पेक्टोरल फिन देयर इज अनदर फिन दैट इज पेयर्ड फिन, दैट इज नोन एज पेल्विक, दैट इज नोन एज पेल्विक फिन। नाउ जो पेक्टोरल फिन है वो है जैसे हमारे हैंड्स है, इफ यू टॉक अबाउट टेट्रापोडा, फोर लिम्स, दैट मीन्स दे आर होमोलोगस टू फोर लिम्स, वी कैन से होमोलोगस टू फोर लिम्स हैं, और ये हैं होमोलोगस टू हाइंड लिम्स। यानी कि ये समझो कि ये हाथ है और ये क्या है? पैर है। ओके, सो पेक्टोरल एंड पेल्विक, ये पेक्टोरल पेल्विक बोन होती है हमारे यहाँ पर, जो पेल्विस जो कुल्ले की जिसकी हड्डी होती है दैट मीन वो पेल्विक है, और यहाँ वाली जो कंध देखिए दैट इज पेक्टोरल, गैडल बोलते हैं इनको। सो पेक्टोरल एंड पेल्विक बोथ आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। ओके, नाउ दिस साइड इज डोर्सल, this lower side is ventral. So here a fin that is known as dorsally present, that is known as dorsal fin, known as a dorsal fin. This dorsal fin could be 1, 2 और 3, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो dorsal fin जो dorsal side पे present है, it could be 1, 2, 3। 1, 2 अगर 3 हो तो इसको ऐसे बोलेंगे, फर्स्ट dorsal fin, सेकंड dorsal fin, थर्ड dorsal fin। ओके, now there is a anus behind this pelvic fin, तो यहां पर हो गया anus, and with anus there is another fin that is known as anal fin, that is known as anal fin। ये पेक्टोरल वर्ड कहां से है? फोरलिम से। पेल्विक कहां से है? हाइंड से। डोर्सल साइड से। एनल फिन वर्ड आया एनस से, तो एनस के जस्ट साथ में पीछे जो है दैट इज नोन एज एनल फिन। ओके, नाउ ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड है, ये डोर्सल है तो अनपेयर्ड होगी, और ये ओके। नाउ इन द लास्ट देयर इज अनदर फिन जो टेल में है, दैट इज नोन एज कॉर्डल फिन। कॉर्डल वर्ड यूज होता है टेल के लिए, कॉर्डल। ओके, सो देयर आर 1, 2, 3, 4, 5 different types of fins are there. Pectoral fin है, pelvic fin है, dorsal fin है, anal fin है, and caudal fin है। So all these different kinds of fin help in, we can say, swimming। तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा? ट्रंक, and last part is tail। So body is divided into head, trunk and tail। Now see, there is a line, okay, and this side is lateral side, this dorsal side, ventral side। तो ये कौन सी साइड होगी? लाइक दिस इज द साइड होगी, तो इसको बोलते हैं लेटरल साइड। तो दिस लाइन इज नोन एज लेटरल लाइन। दिस लेटरल लाइन एक्ट एज, वी कैन से, एक सेंस ऑर्गन का काम करती है, एक्ट एज ए सेंस ऑर्गन। वाटर में मूवमेंट कितना है, वाइब्रेशन कितनी है, ये सारा डिटेक्ट करती है ये लेटरल लाइन, और ऑल्सो एक्ट एज ए सेंस ऑर्गन। ओके, तो ये इसमें हेल्प करेगा। तो कितने पार्ट्स हो गए? माउथ, नोस्ट्रिल, आई, देन ऑपरकुलम, देन पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, डोर्सल फिन, एनस, एनल फिन, कॉर्डल फिन एंड लेटरल लाइन।
These are the basic parts of the, we can say, fish. Now the rest of structure is known as a fish scale. Okay. Now जैसे अलग अलग तरह की फिन्स है, वैसे भी डिफरेंट टाइप्स की स्केल्स हैं ऑन डिफरेंट फिश. So now there are 3 different kind of scale. One is known as placoid, second is known as cycloid, and third is known as ctenoid. Now come to them. The placoid type of scale जो होती हैं, they are pointed होती है और tooth shaped. ओके, ऐसे अगर आपने टूटा हुआ दांत देखा हो, लाइक, ओके, दे आर पॉइंटेड टूथ शेप्ड है, बिकॉज दे आर पॉइंटेड एंड टूथ शेप्ड है. सच टाइप ऑफ स्केल्स आर नॉन एज प्लेकोइड स्केल्स. ओके, अनदर टाइप ऑफ स्केल्स आर नॉन एज cycloid scale. As the name indicates, cyclo means cycle or circular. तो these are the circular scales हैं और जिनमें कुछ ग्रोथ रिंग्स होती हैं, ऐसे रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेगी. ओके, तो these are the cycloid scale. And third type of scale is known as ctenoid scale. If you remember, we have studied a phylum that is known as Ctenophora. तो टीनोफोरा में वहां पर क्या था हमारे पास, उसका मतलब था कॉम्ब, और कॉम्ब में क्या था हमारे पास, जो कॉम्ब के ऐसे जो स्पाइन्स होते हैं वो थे उस पे. ओके, 8 कॉम्ब प्लेट्स थी. ओके, जिन पे ऐसे एक्सटेंशन की कॉम्ब लाइक है. तो दैट मीन दिस साइक्लोइड स्केल इज सेम लाइक वी कैन से टीनोइड स्केल. लेकिन टीनोइड स्केल में क्या फर्क होगा, इफ वी टॉक अबाउट टीनोइड स्केल, तो इस पे स्पाइन्स आ जाएंगे बस. That means we can say cycloid scale with spine is known as ctenoid scale. तो this placoid scale ये hard होती है, tooth shaped होती है. This found in cartilaginous fish, and cycloid and ctenoid scale present in bony fish. Okay, so different kinds of fin and scale. Scale पे वापस आओ दोबारा थोड़ा सा. placoid pointed tooth shaped होती है, ऐसी जैसे शार्क में मिलेगी हमें. देन साइक्लोइड राउंड है विद वी कैन से ग्रोथ रिंग्स होती है, और उस पर मैं स्पाइन्स लगा दूं, यानी कि कॉम्ब लाइक जो एक्सटेंशन है, दैट इज नोन एज टीनोइड स्केल. तो साइक्लोइड एंड टीनोइड दे फाउंड इन बॉनी फिश, एंड दिस प्लेकोइड फाउंड इन कार्टिलेजिनस फिश. ओके, जैसे शार्क है. ओके, नाउ दिस इज अबाउट द डिफरेंट वी कैन से पार्ट्स ऑफ ए जनरल फिश. नाउ अब हमें इसी फिश को क्या बनाना है. दिस फिश इज ए टिपिकल, ध्यान से देखो जरा, दिस इज ए टिपिकल बॉनी फिश है. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट कार्टिलेजिनस फिश. तो कुछ डिफरेंस नहीं आएगा. कार्टिलेज फिश में क्या होगा, द वेरी फर्स्ट डिफरेंस, नाउ दिस टाइप ऑफ माउथ इज नोन एज टर्मिनल. टर्मिनल जो मतलब माउथ आगे की तरफ हो और दोनों जॉ ऐसे खुलती हो. ओके, दैट मीन बोथ जॉ आर ओपनिंग टुगेदर लाइक दिस, और आगे की तरफ माउथ हो, दैट इज नोन एज टर्मिनल. तो हियर दिस माउथ इज टर्मिनल इन केस ऑफ बॉनी फिश. बट अब देखो ये सारी बॉनी फिश है, दोबारा देखो इसको. टर्मिनल माउथ, ओपर्कुलम, पेक्टोरल फिन, पेल्विक फिन, डॉर्सल फिन, एनल फिन, कॉर्डल फिन. ओके, बाकी सारी आईज नोस्ट्रिल वैसे ही हैं. दीज आर द स्केल्स लेटरल लाइन. नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू कार्टिलेजिनस फिश. तो कैसे करेंगे देखो.
now see, okay, in cartilaginous fish the mouth is ventral, माउथ इज वेंट्रल, यहां पर जो माउथ है वो वेंट्रल है। नाउ सी द मीनिंग ऑफ वेंट्रल, जैसे ये अपर पार्ट अपर जो है और ये नीचे की जो है, एंड दिस माउथ इज हियर, हियर वी कैन से माउथ, और ये सिर्फ ये ही जगह ओपन होती है। ओके, सो दिस काइंड ऑफ माउथ इज नोन एज वेंट्रल माउथ, और अगर ऐसा हो तो दैट इज नोन एज एंटीरियर। तो मोस्ट ऑफ बोनी फिशेस द माउथ इज एंटीरियर, बट जो कार्टिलेजिनस फिश में माउथ क्या है, वेंट्रल। सो हियर द माउथ इज वेंट्रल। सेकेंड डिफरेंस इज operculum is absent, operculum is absent, that means the gills are not covered by operculum, gills are not covered by operculum। तो जो operculum है वो क्या होता है, absent। then these fins are solid, जो fins है they are solid, और सॉलिड स्ट्रक्चर की जो फिन्स होती है दे नोन एज फ्लिपर, उनको क्या बोलते हैं हम, फ्लिपर। ओके, नाउ अनदर डिफरेंस इज ऑफ स्केल। अगर हम यहां पर स्केल की बात करें तो दो स्केल्स आर वी कैन से ऑफ placoid type, like this। I'm not drawing all, only to explain you। तो ये क्या होगी, placoid type scale। ओके, क्लियर है। तो माउथ क्या है, वेंट्रल है, ओपरकुलम एब्सेंट है, फिन्स फ्लिपर लाइक है, स्केल प्लेकोइड स्केल है। ओके, हियर द वर्ड इज एनस, उसमें एनस की जगह एक और वर्ड होता है दैट इज नोन एज क्लोएका, दैट इज नोन एज क्लोएका। क्लोएका क्या है, क्लोएका इज ए कॉमन opening for we can say urine है, या हमारी जो दैट मीन्स यूरिनल ओपनिंग है, वी कैन से यूरिनल ओपनिंग, गट ओपनिंग एंड जो जेनाइटल यानी कि रिप्रोडक्टिव ओपनिंग है। वो एक साथ होती है, दैट मीन यहां से क्या आ रहा है, यूरिनल ट्रैक आ रहा है, यहां से डाइजेस्टिव आ रहा है, ये एक से क्या आ रहा है, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक आ रहा है। तो दे ऑल ओपन इनटू ए कॉमन ओपनिंग दैट इज नोन एज क्लोएका, बट एनस इज द ओपनिंग फॉर एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली। ओके, तो ये इसमें कुछ एक स्ट्रक्चरल डिफरेंस हो गए। ठीक है, वन मोर डिफरेंस है that I forgot there। If we talk about bony fish, so there is a structure present inside this body near the stomach known as air bladder or swim bladder। एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर एक ट्यूब का काम करता है, जैसे हम पानी में तैरते हैं ट्यूब लेके तो हम डूबते नहीं है। ओके, एंड नो नीड टू वी कैन से स्विम। तो इन बॉनी फिश एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर वो किस में हेल्प करता है कि बॉडी को कांस्टेंट कर देता है एक जगह, और स्विम करने के लिए किसी से खड़े रहने के लिए नो नीड टू वेस्ट द एनर्जी। बट इन कार्टिलेजिनस फिश स्विम ब्लैडर इज एब्सेंट, तो इसकी वजह से दे हैव टू कंटिन्यूअस स्विम।
उनको कंटिन्यूस स्विम करना रहना पड़ता है हर टाइम। बट दिस प्रॉब्लम इज नॉट विद बॉनी फिश बिकॉज दे आर विद वी कैन से दिस एयर ब्लैडर। ओके, तो ये इस तरह से हम इनमें क्या देख लेंगे, डिफरेंस देख लेंगे। तो नाउ हियर माउथ इज वेंट्रल, operculum absent, then they are like flipper, scale, placoid। यहां पर क्या आ जाएगा, एनस आ जाएगा, क्लोइका आ जाएगा। वन मोर डिफरेंस इज देयर, देखो दिस इज द पैलेट फिन। इफ वी टॉक अबाउट मेल, किसकी बात करें, मेल की, तो यहां पर एक स्ट्रक्चर होती है ऐसी लॉन्ग स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज क्लेस्पर। उसको क्या बोलते हैं, क्लेस्पर। एंड दिस एक्ट एज पेनिस। पेनिस ऐसा काम करता है, दैट मीन्स टू वी कैन से डिस्चार्ज स्पर्म इन फीमेल बॉडी। तो ये जो क्लेस्पर है ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन है, किसके साथ है, पेल्विक फिन के साथ। ओनली फाउंड इन मेल, किसमें, कार्टिलेजिनस फिश में, नॉट इन बॉनी फिश। तो अब देखो माउथ वेंट्रल है, ओपरकुलम एब्सेंट है, ये क्लेस्पर है, ये अलग तरह की क्या है, स्केल है, और यहाँ पर क्या है, क्लोइका है। नाउ these are the different differences between bony and cartilaginous fish. Now we have to discuss about the difference, what are the other and these common differences between bony and cartilaginous fish. Okay, now see the differences between condycthys or osteichthyes mean cartilaginous fish and bony fish. These are the only differences according to our NCERT, और बहुत सारे भी differences हैं इनमें। Now the very first is endoskeleton, तो यहाँ पर बना हुआ कार्टिलेज का, एंड हियर मेड अप ऑफ बोन, वहीं से नाम आया बोनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश। दिस कार्टिलेजिनस फिश इंक्लूड मेनली शार्क एंड रेज। ओके, बाकी जो फिश आपने देखी है दे इंक्लूड इन द बोनी फिश। इफ यू टॉक अबाउट माउथ, देन हियर माउथ इज वेंट्रल एंड हियर माउथ इज टर्मिनल। इफ यू टॉक अबाउट गिल स्लिट, दैट मीन नॉट कवर्ड बाय operculum, मीन operculum is absent and here operculum is present. If we talk about scale, then here the placoid type of scale, that means जो कैसी हो, टूथ लाइक, हार्ड हो, एंड हियर आर द साइक्लॉइड जो ऐसे सर्कुलर है, एंड डिनॉइड दैट मीन्स इस पे क्या है, स्पाइन और स्पाइन है। ओके, these scales are backwardly directed, I forgot there to tell you, backwardly directed mean ऐसे एक ही बैकवर्डली डायरेक्टेड एक ही फ्लो में होती है। जैसे बाल को पीछे से ऐसे करो तो ये देयर इज स्मूथनेस, लेकिन जैसे उनको उल्टा करें तो ये थोड़ा क्या होगा, यहाँ पर रफ सरफेस सा लगेगा हमें। तो दैट मीन दिस इज द बैकवर्डली डायरेक्टेड है। तो बैकवर्डली डायरेक्टेड है। देन एयर ब्लैडर, वी नो हियर एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई दे हैव टू स्विम रेगुलरली, एंड हियर एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट। इफ यू टॉक अबाउट क्लेस्पर्स, सो प्रेजेंट इन मेल, पहले फिन पे है और यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है। क्लेस्पर का क्या काम होता है, टू डिस्चार्ज द स्पर्म। देन सेक्स इज सेपरेट है दोनों में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, अब इंटरनल को यहाँ से ध्यान रखो, क्लेस्पर है तो डिस्चार्ज द स्पर्म, तो डिस्चार्ज बॉडी में करते हैं दूसरे में, तो इंटरनल है। मेनली ओविपेरस, विविपेरस भी है। इफ यू टॉक अबाउट बॉनी फिश, सो हेयर फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल इन वाटर होती है, एंड मोस्टली ओविपेरस है ये। ओके, इफ यू टॉक अबाउट क्लोइका एंड एनस, तो इसमें क्लोइका होता है, क्लोइका मीन यूरिन के लिए, वी कैन से फीकल मैटर के लिए, एंड रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है उस तीनों के लिए सिंगल ओपनिंग है। बट हियर इज द एनस, एनस मीन ओनली फॉर द, तो अलग हो सारी। ओके, टू अदर कैरेक्टर्स आर आल्सो देयर, 2-3 जो बुक में है, जो डिफरेंस में नहीं आते। लाइक इनकी जो जॉ है वो बहुत ही पावरफुल है। शार्क कितनी पावरफुल है देखो, प्रीडेशियस है मेनली, ये हर्बीवोरस भी है, कार्निवोरस भी है, ओमनिवोरस भी है। ओके, देन सम विद डिफेंस के लिए ऑर्गन है उसके पास, लाइक इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, फिश है, टॉर्पिडो, और पॉइजन स्टिंग हो सकता है, जैसे ट्राइगन है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्टिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज मीन कार्टिलेजिनस फिश एंड बॉनी फिश। आई थिंक दीज आर क्लियर। ये हमें स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बॉनी फिश एंड कार्टिलेजिनस फिश।
Now we have to move towards the examples. Okay. Now these are the different examples of cartilaginous fish and bony fish. Add one difference: cartilaginous fish are marine and bony fish are marine as well as a freshwater fish. तो ये ऐड कर लेना. So contact fish are divided into two we can say main group. One is shark and second is of ray. So one example is of Scoliodon, that is known as dog fish. डॉग की जितनी फास्ट शिकार करने में ये है, और बहुत सारे दैट मीन्स वी कैन से स्मॉल फिशेस एक साथ खाती है, तो इसलिए इसका नाम डॉग फिश है. देन सेकंड इज कैरोडॉन. दिस इज नॉन एज ग्रेट वाइट शार्क, जो कॉमन जो शार्क कभी आपने देखी होगी. देन इफ यू टॉक अबाउट रेस, देन वन इज नॉन रिस्टिस. दिस इज नॉन एज सॉ फिश. सॉ का मतलब होता है आरी. बुक में गिवन डायग्राम है, जो माउथ है इसका स्नाउट आगे तक ऐसे निकला हुआ है, एंड देयर आर सम we can say spine like structure on the that elongated mouth. Okay, जो anterior part है. So sawfish, then torpedo, electric ray, जो electric current we can say release करती है when someone touch it, and trigon, that is known as stingray. Okay, then if we talk about osteichthyes, then they are marine, freshwater and aquarium. Three different examples are given of three different group. So marine है जैसे एक्सोसीटस है, also known as flying fish. इसके जो फिन्स है ऐसे खुल जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे उड़ रही है पंख जैसे अपने खोल के. सो एक्सोसीटस, दैट इज फ्लाइंग फिश. देन हिपोकैम्पस, ये वर्ड आया सी हॉर्स, दैट मीन्स द माउथ ऑफ दिस हिपोकैम्पस इज लाइक हॉर्स के जैसा होता है, तो दिस इज द सी हॉर्स. देन फ्रेश वाटर, लेबियो, जो बिल्कुल कॉमन है, ऑल्सो नोन एज रोहू. देन कैटला, then Clarius, Magur is known as Magur, then Betta is known as fighting fish, and Pterophyllum is known as angelfish. ये हम किस में रखते हैं? एक्वेरियम में. These are for fresh water, these are for marine water. So examples are very important in MCQ question or competitive exam. तो that means biological name as well as a common name. अब इसमें कितनी सारी चीजें बन सकती है, जैसे शार्क, बायोलॉजिकल नेम, कॉमन नेम, तीन चीजें होगी. इसमें देखो मरीन, फ्रेश वाटर, एक्वेरियम, देन बायोलॉजिकल नेम एंड कॉमन नेम. 5 अलग अलग तरह से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं. ओके, सो दिस यू हैव टू लर्न अकॉर्डिंग टू यू. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द Pisces. We have seen what are the different types of scale, what are different types of fins, how the we can say position of mouth, or how the scales are, how the different scales are found or present on what type of fish. Bony fish क्या है, cartilaginous fish क्या है. So this is all about the fishes. In next lecture we will talk about amphibians and reptiles. Okay, thank you.